Hello students, my name is Pradeep. I welcome you all in this learning session from Sun Valley School. In today's session, we are going to read a colorful, vibrant and beautiful poem, The Schoolboy, which is written by the poet William Blake. In this poem, the poet is a schoolboy. The poet है वो एक school boy है and he is not happy with his school days. जो poet है वो अपनी school days से बिल्कुल भी खुश नहीं है. क्यों नहीं खुश है? We would be reading through the poem. The poet has compared his school days, his school life with a caged bird, with a plant, with a flowers. किस तरह से कंपेयर किया है, क्यों कंपेयर किया है? एक केज्ड बर्ड्स यानी जो बंद पिंजड़े में जो चिड़िया होती है उससे अपनी लाइफ को कैसे वो कंपेयर करता है, एक मुरझाए हुए फूल से कैसे और क्यों कंपेयर करता है. वी विल बी रीडिंग ऑल दोस थिंग्स in this poem. So let us read the poem. The first stanza of this poem is: I love to rise on a summer morn when birds are singing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what a sweet company. In the first stanza, the poet wants to tell that he loves to rise on a summer morn. Summer morn yani summer wali morning. The poet loves to wake up in summer morning, and it is the time when birds are singing on every tree. It is the time when birds are chirping on every tree. And it is the time when the distant huntsman winds his horn. ये वो समय होता है जो चिड़िया है वो चहचहाती हैं, जो हंट्समैन है जो शिकारी हैं, दे वाइंड्स हिज हॉर्न, वो अपने हॉर्न को प्ले करते हैं. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी. स्काईलार्क इज अ काइंड ऑफ बर्ड. जो स्काईलार्क है वह एक तरह की चिड़िया का नाम है, एक चिड़िया का नाम है. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी. दैट मीन्स in the second, third and fourth line, the poet has tried to summarize, the poet has tried to explain the time of the summer morning. Summer morning के समय को कहीं ना कहीं explain करने की कोशिश किया है. By remembering all these activities, poet अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है इन द लास्ट लाइन. ओ व्हाट ए स्वीट कंपनी. ये सारी एक्टिविटीज को याद करके पोएट कहता है ओ व्हाट ए स्वीट कंपनी. दैट मींस as per the poet, it is his best company and he enjoys it very much. That means in the first stanza, what we can say, in the first stanza of this poem, the poet is telling about all things which make the schoolboy happy. He likes the birds, love to rise in the morning. He enjoys the activities. What happens in the at that time? What happens in the summer morning? I hope फर्स्ट स्टैंजा का क्या मतलब क्या मतलब निकल के आ रहा है, पोएट क्या कहना चाह रहा है, चीजें क्लियर हो गई होंगी. नाउ मूविंग अहेड ऑन द सेकंड स्टैंजा. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye out on, the little ones spend the day in sighing and dismay. In the second stanza, the tone of the poem totally changed from delight to the joylessness. होता क्या है, अभी जो पहले स्टैंजा में समर मॉर्निंग को जिस तरह डिस्क्राइब किया गया, एक तरीके से एक अच्छा माहौल बना, वो पूरी तरह चेंज हो जाता है. What has happened in the second stanza? Actually, the poet is telling the problem. ये सारे जो है तब उड़ जाते हैं, तब चले जाते हैं जब उसको स्कूल जाना पड़ता है. बट टू गो टू स्कूल इन द समर मॉर्निंग, बट यानी कि लेकिन गो टू द स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, जो समर मॉर्निंग में उसको जब स्कूल जाना पड़ता है, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. इट ड्राइव्स मतलब कहीं ना कहीं ड्राइव्स मतलब आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, आप उसको राइड करते हैं, ले जाते हैं, इसी तरह ये सारे जॉय को लेके जाता है कहाँ, अवे, बहुत दूर लेके चला जाता है. गोइंग टू द स्कूल इन द समर मॉर्निंग, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, बहुत दूर लेके चला जाता है जॉय को. दैट मीन्स जो उसकी खुशियां हैं वो उड़ जाती हैं, चली जाती हैं, परेशान हो जाता है. क्यों परेशान हो जाता है? अंडर क्रूअल आई आउटमोन, the little ones spend the day in sighing and the dismay.
Actually, what happened during the school hours? The students have to spend all their day under a teacher who keeps a close eye on a students. स्कूल डेज में आप लोग को स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनकी निगाह में रहना पड़ता है, उनके नजर में रहना पड़ता है, और कहीं ना कहीं एक क्लोज आई आप पे रखा जाता है कि व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ यू आर एक्टिंग, ऑल दोज थिंग्स. तो इन्हीं चीजों से, इन्हीं जो क्लोज आई टीचर्स आप पे निगाह रखते हैं, इन्हीं को ही यहाँ पे जो स्कूल बॉय है एज पर दिस पोएम उसको क्रूअल आई से कंपेयर किया गया है. यानी जो एक तरीके से निगाह रखा जाता है, क्लोज आई है, उसको क्रूअल आई से यहाँ पे कंपेयर किया है. और ये क्या करता है, लिटिल बॉय को पूरे दिन इस क्रूअल आई के निगाह में, इसके सर्विलांस में रहना पड़ता है. और जो कि क्या कारण बनता है, द स्टूडेंट्स हैज टू स्पेंड, जो उनको पूरे दिन इस क्लोज आई में ही रहना रहता है, उनके निगाह, टीचर्स की निगाह में रहना पड़ता है. इसीलिए द स्टूडेंट्स हैज टू स्पेंड द इन साइंग एंड डिस्मे, इसीलिए उनको भय में रहना पड़ता है, परेशान रहना पड़ता है. क्यों भय, क्यों बिल्कुल मतलब भयभीत रहते हैं? वी वुड बी रीडिंग in this in the next stanza. So what we can say in the second stanza, what the poet want to tell, in the school the students have to spend all their day under a teacher, और जब वो उस पर निगाह रखता है, उसकी एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उससे प्रॉब्लम है बच्चे को. इसीलिए वो कहीं ना कहीं भयभीत रहता है. जब कोई ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो स्कूल में नहीं होनी चाहिए, टीचर्स डांटता है, तो बच्चे को लगता है कि नहीं, इट शुड बी नॉट हैपनिंग. इसी वजह से जब डांट पड़ती है तो बच्चा भयभीत होता है, एंड दे हैव टू स्टे इन साइंग एंड डिस्मे. So moving ahead on the third stanza. Then at times I dropping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in a learning's bower. On through with the dreary shower. बेटा इस स्टैंजा को हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, बिकॉज हियर कपल ऑफ फ्रेजेस हैज बीन टेकन. उस पहले फ्रेजेस को हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, फिर पूरा मतलब इस स्टैंजा का समझ में आएगा. फिलहाल पहले की दो लाइन आसान है, उसको पढ़ते हैं. देन एट ए टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट, ये ड्रॉपिंग यानी झुकी हुई गर्दन की तरह बैठे रहना. तो दैट मीन्स द पोएट वांट्स टू एलैबोरेट हियर दैट कि समटाइम्स द पोएट sits for the long time with his head hanging down. वो अपना जो हेड है वो नीचे झुकाए हुए, गर्दन झुकाए हुए बैठे रहना पड़ता है. and spends many an anxious hour. anxious मतलब एक तरीके से बोरिंग आवर, और कई बार उसको कई घंटे जो है, जो बोर्डम के आवर्स है, उसको स्पेंड करना पड़ता है, उससे परेशान होना पड़ता है. उस बोरिंग आवर्स में क्या करता है वो बच्चा, कहीं ना कहीं अपने गर्दन को झुकाए हुए बैठा रहता है. उसके बाद क्या कहता है, नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट. The poet is not having the poet is not having delight in his book. जो पोएट है वो अपनी किताबों में खुशियां, अपने जोआए जो उसको चाहिए वो नहीं ढूंढ पाता है. That means he neither enjoys reading his books. जो पोएट है वो अपनी किताबों को में खुशियां नहीं खोज पा रहा है, उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है. Nor sit in learning's bower. ये learning's bower क्या होता है? And this is the important actually. बावर्स में सुख होता है, दिस इज शेड, एक तरीके से शेड ऑफ है प्लेस, मतलब कह सकते हैं द वी कैन से दैट कि इट learning's powers means we can say that ki learn is a place where someone comes to learn. It can be a school or a university or any other institution where people gather and acquire knowledge. एक तरीके से शैडो तो नहीं कह सकते बावर्स को, बट इट बावर्स तो शैडो तो नहीं कह सकते, बट हाँ इट इज अ शेड ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स या ट्री और any whom we can say that कि it is a shade of a tree. We can finally, और learning's power जब आएगा, जो ये phrase होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग तरीके से है a place where peoples come to acquire a knowledge. It can be a school, it can be university, it can be institution, कोई भी जगह हो सकती है. तो learning's powers मतलब ऐसा स्थान जहां पे नॉलेज एक्वायर करने या नॉलेज गेन करने लोग आते हैं.
और भी एक चीज है, Montreux with the ड्रारी शावर। ड्रारी शावर में मीन्स क्या हुआ? ड्रारी शावर एक तरीके से बारिश जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करना हो, एक तरह की बारिश जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान करने वाला हो। तो नॉट सिट इन द हैंगिंग लर्निंग बावर वॉन्ट थ्रो विथ ड्रारी शावर। यहाँ पे जो स्कूल बॉय कहना चाह रहा है, एज पर द स्कूल बॉय, लर्नर्स बावर इज डैमेज्ड, हैज डिफेक्ट। जो लर्नर्स बावर है यानी जो स्कूल कह सकते हैं, द लर्निंग प्लेस जहां पे भी बच्चा पढ़ता है, वो वहां पे कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ डैमेज है। जो वहां का सिस्टम है, देयर इज अ डिफेक्ट बिकॉज इट वाज हिट बाय द ड्रारी शावर, क्योंकि ये ड्रारी शावर से द्वारा हिट किया हुआ है। यानी जो ड्रारी शावर एक सिस्टम बारिश, मतलब एक तरीके से यहाँ पे ड्रारी शावर यानी एक ऐसी इस तरह का फुहारा, इस तरीके की बारिश जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है, जो फिर डिजास्टर्स लाने वाला है। तो यहाँ पे ड्रारी शावर यानी बारिश से हमें नहीं कोई लेना देना है। वी हैव टू गेट द मीनिंग, इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसकी मीनिंग निकालनी पड़ेगी। तो वी कैन से दैट कि हाउएवर वी कैन रिलेट दिस ड्रारी शावर विद द लर्निंग बावर्स। किस तरह रिलेट करेंगे? whenever we try to relate dry shower to the learner's power, it means that the school education system has been damaged or it's defective। कहीं ना कहीं जो लर्निंग्स पावर है, इसका जो सिस्टम है वो एक तरीके से वो डिफेक्टिव है, डैमेज्ड है। इन कपल ऑफ लाइन द पोएट वांट्स टू टेल दिस वन थिंग। एक बार फिर से स्टैंजा को एक बार समझने, एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, व्हाई द स्कूल सिस्टम इज डिफेक्टिव। यहाँ पे जो क्रूअल आइस वर्ड से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो ये क्यों ऐसा कह रहा है, जो क्रूअल आइस यानी जो हमेशा निगाह सर्विलांस बच्चों पे रहती है, इस वजह से बच्चा कह रहा है। फिलहाल थर्ड स्टैंजा के को समझने की कोशिश करते हैं। Then at times I dropping sit and I spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, on through with the dreary shower. उस समय मतलब ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स बच्चों को कई बार सर झुकाए बैठे रहना पड़ता है, और जो बोर्डम के जो आवर्स होते हैं, बोरियस आवर्स होते हैं, बोरिंग करने वाले आवर्स हैं, उसमें उसको समय व्यतीत करना पड़ता है। Nor in my books can I take delight. उसे the poet is not having joy in their book. जो पोएट को उसकी जो खुशियां हैं वो उसके बुक्स में नहीं मिल पाती। Nor sit in the learning hour, ना ही उस लर्निंग प्लेस पे बैठने में मिल पाती है, जो कि एक ड्राई शावर से ग्रसित है। जो कि क्यों नहीं मिल पाती? बिकॉज जो यहाँ का सिस्टम है एक तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डैमेज है, कुछ डिफेक्ट है। तो दैट मीन्स in the third stanza the poets wants to tell, the poets has tried to express their feeling during the school hours and also has tell about the स्कूल सिस्टम, जो स्कूल सिस्टम्स के जो प्रोसेस हैं कहीं ना कहीं उसके बारे में भी बताने की कोशिश किया गया है कि क्यों आखिर वो बोर्डम की आवर्स क्यों नहीं खुश है बच्चा, ये बताने की कोशिश किया गया है। नाउ मूविंग अहेड ऑन द फोर्थ स्टैंजा। How can a bird that is born for a joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? The fourth stanza, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? In these couple of lines, the poet, that is a schoolboy, compares himself to a caged bird. He's telling that a bird which is born to remain free, how can they sing in a cage? जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसी चिड़िया जो कि स्वतंत्र रहने के लिए ही जिसका जन्म हुआ हो, उसे पिंजड़े में बंद करके हम कैसे ये मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो पिंजड़े में बंद रहे और गाना गाए और खुश रहे। एक तरीके से पोएट अपने आप को एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि एक बच्चे को जब इस तरीके से बंद, मतलब एक पिंजड़ा जो है स्कूल को एक तरीके से बोला जा रहा है, फिर पिंजड़े से स्कूल को कंपेयर किया जा रहा है कि अगर बच्चों को इस तरीके से पिंजड़े में यानी स्कूल में इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए अगर हम पिंजड़े की तरह हम बिल्कुल माहौल देंगे तो वो कैसे वो अपनी चीजें व्यक्त करेगा, कैसे वो अपनी चीजें एक्सप्रेस करेगा। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, वही बात आ गई जो अभी यहाँ पे मैं समझा रहा था।
How can a child when fears annoy but droops his tender wings and forget his youthful spring? How can a child when fears annoy but droops his tender wing and forget his youthful spring? Here the schoolboy is telling that when a child has to be in a fear, when a child to be in a fear, it feels that he is prisoner in the school. As a result, जब वो स्कूल में रहता है तो एक तरीके से वो प्रिजनर की तरह रहता है, बंदी की तरह रहता है. As a result, as a caged bird, his wings down and forget to share the joy of spring. Similarly, the boy also forget the enjoy his young days. जिस तरीके से आपका यहाँ पे जब वो एक तरीके से केज्ड बर्ड्स की तरह एक पिंजड़े में रहता है, उस तरीके से रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो अपनी चीजें, अपने जो पंख, यहाँ पे विंग मीन्स पंख होगा, जैसे कि वो नहीं फैला पाता, वो अपनी चीजें नहीं व्यक्त कर पाते. और कहीं ना कहीं ये उनका जो यूथफुल स्प्रिंग्स होता है, हम यानी यूथफुल स्प्रिंग यानी एक तरीके से बिना, जब कोई बिना वसंत के, बिना जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग डेज को कहीं ना कहीं वो भूल जाना, तो आप उसके लिए आप भूल ही जाइए, कहने का मतलब. द बॉय फॉरगेट टू एंजॉय हिज यंग डेज. जो अब जो बॉय है वो इस माहौल में कहीं ना कहीं जो अपने यंग डेज होते हैं, जो अपने बचपन के दिन होते हैं, उसको एंजॉय करना कहीं ना कहीं भूल ही जाता है. सो आई होप दैट कि यू understood the fourth stanza, and now we can move ahead on the fifth stanza. O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tenderest plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. Here, the poet is in conversation with his parents. Here the poet is in the conversation with his parents. अपने माता पिता से बात करता है. क्या बात करता है? ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, अगर जो कली है उसको आप तोड़ देंगे, एंड ब्लॉसम्स ब्लॉन अवे, अगर अब कली है, जो बर्ड्स है, आप उसको आप कहीं ना कहीं तोड़ देंगे, उससे उसका बचपना छीन लेंगे. देन ब्लॉसम्स ब्लॉन अवे, जो ब्लॉसम्स यानी फ्लावर्स है वो दूर के हो जाएंगे, दूर के दिन हो जाएंगे, वो चले जाएंगे. बचपन में ही जब किसी बच्चे का बचपना छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं जो उसके रिजल्ट है, यानी जो ब्लॉसम्स है, जो फ्लावर्स है, यानी जो बच्चे का रिजल्ट है, जो आप फ्यूचर में जिसे आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उससे दूर चला जाएगा. एंड इफ द टेंडर्स प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, अगर जो टेंडर प्लांट है यानी जो कोमल पौधे हैं उनको आप तोड़ देंगे, देन हाउ वी वुड बी गेटिंग द जॉय इन द स्प्रिंग डे, यानी जो स्प्रिंग डे में जो उल्लास है, जो जॉय है, वो कैसे मिलेगा? उसकी जगह पे इट विल बी फिल्ड विद द सॉरो एंड द केयर्स, जिसमें ये कहीं ना कहीं एक तरीके से घबराहट या दुख में बदल जाएगा. सो इन द फिफ्थ स्टैंजा द पोएट wants to tell to their parents, the poet wants to convince his parents. दो एग्जांपल्स, जो दो तर्क देकर के वो कन्विंस करना चाहता है कि अगर किसी फूल को, मतलब किसी बर्ड्स को अगर आप पहले से ही तोड़ देंगे, पहले से ज्यादा ओवरलोड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो बचपना है वो चला जाएगा, जो उसका रिजल्ट है वो चला जाएगा. दैट मीन्स एक तरीके से कहा गया कि जो बच्चे पे इतना ज्यादा ओवरलोड ना किया जाए, इतना ज्यादा डिसिप्लिन या रूल्स में ना बांध दिया जाए कि उसका बचपना, यानी वो अपनी चीजें एक्ट ही ना कर पाए, अपनी चीजें एक्सप्रेस ही ना कर पाए. यहाँ पे टेंडर प्लांट्स और जो बर्ड्स को स्ट्रिप या निप्ड करने के लिए बोला गया है, इस तरीके से कंपेयर किया गया है. अगर हम इस तरह करेंगे तो जो बच्चा भी है, दैट ऑल्सो वुड बी द फिल्ड विद द सॉरो एंड द केयर्स, जिसमें और एक तरीके से वो घबराहट में या सौरव में यानी दुखी हो जाएगा, और कहने के वो अपना जॉय नहीं, जॉय को मतलब ही वोंट बी एंजॉय हिज चाइल्डहुड. नाउ मूविंग ahead in on the fifth stanza of this poem, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear, or how shall we gather what creeps destroy, or bless the mellowing year when the blast of winter appear. This stanza is the continuous from the previous stanza. Previous stanza में क्या हुआ था? The poets wants to appeal their parents to not harass their children.
by referring that like a flowers birds, if the child's freedom is snatched away, the child will be left in sorrow and dismay. यही तो कहना चाहा था. Like a flowers birds, like a tender plants, the child's freedom is snatched away. अगर आप उसको निप दिया, स्ट्रिप करेंगे, then the child's life will be in sorrow and they may dismay. That means the poets wants to appeal the parents to not to harass, not to overload their children. Moving ahead on the fifth stanza, एक बार हम आए फिर वापस चले गए, कोई बात नहीं. How shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? बेटा वही बात, फोर्थ स्टैंजा से फिफ्थ स्टैंजा एक कंटिन्यूअस फॉर्म है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पेरेंट्स ही पूछे जा रहे हैं, पेरेंट्स को समझाने के लिए. हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, जो समर है वो जॉय वाले समर कैसे आएंगे. अकॉर्डिंग टू द पोएट, समर कैन बी जॉयफुल व्हेन द बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स आर कट. हाउ समर्स कैन बी जॉयफुल व्हेन द फ्लावर्स और प्लांट्स आर कट. When the buds of flowers are cut, the flowers threw away and the twigs removed away. जो twigs है यानी जो छोटे छोटे पौधे हैं, जब उनको दूर कर देंगे, जो flowers जो birds हैं उनको आप कट कर देंगे, then how we can expect the summer in joy or the summer's fruits appear. The fruits of summer would never appear. Thus how the plants would be able to get the fruits which has been destroyed. How shall we gather what griefs destroy or bless the mellowing year? How can the summer be a blessing when the blasts of winter appear? Here, आखिर कोई भी समर कैसे ब्लेसिंग हो सकता है? When the blast of winters appear. That means in the final stanza, the poet wants to tell that he compares the children to the spring plants which have been destroyed. ये कैसे spring plants से अपने आप को compare करता है जो कि destroy हो चुका है, which have been destroyed. According to him, poet के अनुसार, like the flowers, the children too need freedom for efficient growth. Plants की तरह बच्चों को भी एक तरीके से freedom या freedom चाहिए होता है for the efficient growth. उनके ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए भी उनको एक तरीके से प्लांट्स की तरह फ्रीडम ही चाहिए होता है. सो द पोएट, मतलब जो लास्ट वाला स्टैंजा है, इट इज अ मेटाफोरिकल एक तरीके से. सो आई थिंक द जो पोएट है यहाँ पे एक तरीके से जो फिफ्थ स्टैंजा था उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने पेरेंट्स को ही यहाँ पे भी कन्विंस करने की कोशिश करता है. दिस इज हाउ वी कैन समराइज दिस चैप्टर, दिस स्टैंजा. what is the some how we can say that if their freedom is snatched away, जो बच्चों का freedom है वो उनसे दूर ले लिया जाएगा, and their joy birds are cut off, जो उनके joy birds हैं, जो उनकी खुशियां हैं, उसको कहीं ना कहीं अगर हम कट कर देंगे, because of the schools they will never be able to get properly educated and hence serve the society. एक तरीके से अगर उनके joy birds को हम कट कर देंगे, उनके freedoms को हम उनसे दूर कर लेंगे, तो शायद एजुकेशन के बाद भी बीइंग एजुकेटेड वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को सर्व ही नहीं कर पाएंगे. एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद भी वो नहीं सर्व कर पाएंगे. सो द पोएम is a criticism on the way schools impart education. कहीं ना कहीं जो ये पोएम है, स्कूल्स की जो पुरानी पद्धति है बच्चों को पढ़ाने की, कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है. तो दिस इज व्हाट फ्रॉम द विलियम्स ब्लैक. अभी आई होप आप लोग जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, you all can find out the answers of these questions from the poem. If there is any of the issue, you all can comment and you all can ask during the school hours. Okay, I hope आप लोग को समझ में आया होगा. आप लोग इस पोएम्स को एक बार, दो बार, तीन बार ढंग से देख लीजिएगा, जिससे आपको सारे पोएम्स, सारे स्टैंजास के कुछ मतलब समझ में आ जाए. During the school hours, we would be discussing these questions and also you would be writing the answers of them. सबसे पहले आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करिएगा. First of all, you need to try by yourself to write the answer of these questions. Thereafter, we would be discussing during the school. That's all for today. Thank you so much.